ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات میں کانگریس کی شاندار جیت، تقریباً 1500 وارڈز پر کامیابی، BRS دوسرے نمبر پر۔ بعض بلدیات میں آزاد امیدواروں کا بادشاہ گر موقف۔ نظام آباد کارپوریشن، بھینسا و بودھن میں مجلس کے 12 امیدوار منتخب، جملہ 65 امیدوار کامیاب۔ بیلٹ پیپر کی وجہ سے انتخابی نتائج میں تاخیر۔ بلدی انتخابات میں شاندار کامیابی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے کیا اظہار تشکر۔ حکومت کی بہترین کارکردگی پر عوام کا فیصلہ، وزراء کا رد عمل۔ حکمران جماعت تمام کوششوں کے باوجود عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام، تمام وسائل کے استعمال کے باوجود BRS کے امیدوار کامیاب۔ KTR اور ہریش راؤ کا نتائج پر تبصرہ۔ ریلوے پولیس نے گانجے کی منتقلی کو بنایا ناکام، 2 افراد گرفتار۔ اور ٹاسک فورس نے طلائی چین چھیننے والے سارق کو لیا تحویل میں۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، VIP شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل VIP نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात के तकरीबन नतायज का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। 2853 वार्ड्स के मिंजमला कांग्रेस ने तकरीबन 1500, बीआरएस ने 764, बीजेपी ने 278 और दूसरों ने 270 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। बाज बलदियात के लिए मौलक नतायज सामने आए हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को बादशाहगर मौक़िफ़ हासिल हुआ है। करीमनगर के महबूबाबाद की बलदिया पर कांग्रेस ने 16 वार्ड्स, बीआरएस 8, बीजेपी 5 और एक पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पेदापल्ली बलदिया के 38 वार्ड्स के मिंजमला कांग्रेस 29, फॉरवर्ड ब्लॉक 5, बीजेपी 1 और बीआरएस ने एक पर कामयाबी हासिल की। महबूबाबाद जिले के मारी पेडा बल्दिया में कांग्रेस 8, बीआरएस 6 और एक पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। सुल्तानाबाद म्यूनसिपैलिटी में कांग्रेस ने 12, बीजेपी 1 और बीआरएस ने एक पर कामयाबी हासिल की। महबूबाबाद तुरूर बल्दिया पर बीआरएस 10, कांग्रेस 6 वार्ड पर कामयाब रही। संगारेड्डी में बीआरएस ने अच्छा मुजाहरा किया। पटनचेरू के तहत अदरेशमगुड़ी, पोतारम और गुम्बडी दला में बीआरएस पार्टी ने कामयाबी हासिल की। स्टेशन घनपुर बल्दिया पर कांग्रेस 13, बीआरएस 3 और आज़ाद उम्मीदवार 2 पर कामयाब हुए। हुजराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो गया है। 30 रुकनी वार्ड्स में कांग्रेस ने 16, बीआरएस ने 8, बीजेपी ने 5 और एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सिरसिल्ला म्युनिसिपैलिटी के 39 वार्ड के मिंजमला 27 पर बीआरएस पार्टी ने कामयाबी दर्ज की। 6 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी और एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। इब्राहिमपट्टनम म्युनिसिपैलिटी में 24 वार्ड के मिंजमला 13 पर बीआरएस ने कामयाबी दर्ज की। विमलावाड़ा म्युनिसिपैलिटी के 28 वार्ड्स के मिंजमला कांग्रेस ने 13, बीजेपी ने 8, बीआरएस ने 5 और आज़ाद ने 2 पर कामयाबी हासिल की। देवरकुंडा म्युनिसिपैलिटी के 20 वार्ड के मिंजमला कांग्रेस ने 11, बीआरएस ने 6, बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार ने 2 पर कामयाबी दर्ज की। नलगुंडे की तमाम बल्दियात पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ है। 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। 116 बलदियात में से 47 पर कांग्रेस, 9 पर बीआरएस का कब्जा हुआ है। स्टेशन घनपुर म्युनिसिपैलिटी पर कांग्रेस ने झंडा लहराया। 18 वार्ड पर हुए इंतखाबात में 13 पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। 3 पर बीआरएस और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मुकामी एमएलए के एस रेहरी के दफ्तर पर पार्टी कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। बलदी इंतखाबात में नलगुंडा जिले की चिटियाल बल्दिया में मुकन्निस यानी कि एक ट्रांसजेंडर भी मुंतखब हुआ है। बताया जाता है कि सुधाकर नामी ट्रांसजेंडर ने वार्ड नंबर 1 पर 102 वोटों से कामयाबी हासिल की। जैसे ही सुधाकर की कामयाबी का ऐलान हुआ, वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका। दौड़ते हुए उसने अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। कुमरमहीम आसिफाबाद जिले में आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ मिलाने के लिए कांग्रेस के कारकुन उसका पीछा करते हुए देखे गए। बताया जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार विनोद, जो कि वार्ड नंबर 1 से कामयाब हुआ था, मुकामी लीडर श्याम नायक की तरफ से विनोद का पीछा करते हुए देखा गया, यहां तक कि उसे ऑटो से उतारने की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही बीआरएस पार्टी के कारकुन वहां पहुंच गए। उस वक्त माहौल वहां पर कशीदा देखा गया। विनोद लेकिन मुकामी वाक़े से बच निकलने में कामयाब हो गया। राजन्ना सिरसिला जिले के विमलावाड़ा म्युनिसिपैलिटी के तहत बीआरएस पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा करते हुए धरना दिया। वार्ड नंबर 1 की उम्मीदवार लता, वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार नीलम शेखर और वार्ड नंबर 26 के उम्मीदवार एम जामुन ने कहा, मौसर तौर पर गिनती नहीं की गई, इसलिए फिर से वोटों की गिनती की जाए। जंगामा म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस और बीआरएस ने 13 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार को बादशाहगर मौक़िफ़ था। इस म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस और बीआरएस को 13 वार्ड्स पर कामयाबी मिली, जबकि एक वार्ड पर आज़ाद उम्मीदवार पांडू मुंतखब हुआ। पांडू को अपने साथ लेने के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान धक्कम-पेल हुई। एक दूसरे के साथ बहस व तकरार देखी गई। पुलिस को सूरत हाल को काबू में करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बीआरएस कारकुनों का कहना था कि पांडू उनके साथ आना चाहता है, जबकि कांग्रेस के दूसरे कारकुनों का कहना था कि पांडू ने उनके साथ शामिल होने का इशारा दिया है। रियासत तेलंगाना में मुनक़्क़दा बलदियात की इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चंद बलदियात और बलदी कॉरपोरेशंस में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी तक जारी करदा नतायज के मुताबिक मजलिस के 12 उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह भैंसा बोधन की बलदियात में मजलिस को नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। तरतीबवार इन दोनों बलदियात में मजलिस के 12 उम्मीदवार मुंतखब करार दिए गए।
کریم نگر म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के 3 उम्मीदवारों को मुंतखब करार किया गया। नलगुंडा और महबूब नगर कॉरपोरेशंस में तरतीबवार 2 और 1 मजलिस उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इन मुकामात पर अभी नतायज जानने बाकी हैं। शाम 6 बजे तक मौसूला इतला के मुताबिक आदिलाबाद से मजलिस के 6 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। निर्मल से 3, जहीराबाद से 2, नारायणपेट से 2, जगतियाल से 2, संगारेड्डी, कागज नगर, गदवाल, कोहीर, कोड़ंगल, विकाराबाद, आरमोर और तांडूर से मजलिस का एक एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है। ये इंतखाबात चूंकि बैलेट पेपर पर मुनक्किद हुए, इसलिए वोटों की गिनती में बड़ी ताखीर हो रही है। राय शुमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई, लेकिन बैलेट्स को जमाने के लिए काफ़ी वक्त लगा और गिनती का अमल तकरीबन 2 बजे शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि वोटों की गिनती का अमल रात देर गए तक जारी रहेगा। मुकम्मल नतायज के ऐलान तक ये अमल बिला वक्फा जारी रहेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में 116 म्यूनसिपैलिटीज़ और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पे हुए इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा, यह कामयाबी लाखों कारकुनों की मेहनत और पार्टी के तय उनकी वाबस्तगी का नतीजा है। वज़ीर आला ने कहा, गुज़िश्ता 2 सालों में अवामी हुकूमत की फलाही स्कीमों, गरीब व मुतवस्सित तबक़ात की बहबूद और तरक्याती मनसूबों को अवाम ने अपने फैसले के ज़रिए मुकम्मल तायद की है। वज़ीर आला ने कहा, यह कामयाबी ज़िम्मेदारी को मज़ीद बढ़ाती है और हुकूमत आइंदा हर म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन की तरक्की, अवामी फलाह और शफ़ाफ़ हुक्मरानी को यकीनी बनाते हुए अवाम के एतमाद को बरकरार रखेगी। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कोल्हापुर में कहा, बलदियाती इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस पर एतमाद का वाज़ेह फैसला दिया है। उन्होंने कहा, हर इंतखाब में कामयाबी कांग्रेस की ही साबित हो रही है और ये नतायज रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत हैं। जे कृष्णा राव ने कहा, अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है और यह कांग्रेस कारकुनों की मुश्तरका मेहनत की जीत है। अपोजिशन की तनकीद को अवाम अहमियत नहीं दे रहे हैं। रियासती वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा MPTC और ZPTC के इंतखाबात में भी अवाम यही फैसला देंगे। मुश्तरका महबूब नगर ज़िले में कांग्रेस ने ज़्यादातर बल्दियाती नशिस्तें जीती, जबकि कोल्हापुर म्यूनसिपैलिटी के 19 में से 16 नशिस्तें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। दूसरी तरफ रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रियासत भर में हुए बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा, यह सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि अवाम की जीत है। उन्होंने कहा, शहरी अवाम ने हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों पर एतमाद ज़ाहिर किया। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को अवामी हिमायत हासिल हुई है। रियासती वज़ीर ने कामयाब काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद देते हुए हिदायत दी कि वह अवाम के एतमाद को बरकरार रखते हुए हर वार्ड में तरक्याती कामों को तेज करें। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने बलदियाती इंतखाबात के नतायज पर पार्टी कारकुनों और अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, हुक्मरान जमात की कोशिशों के बावजूद वो अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। मीडिया से बात करते हुए KTR ने दावा किया, नतायज से ज़ाहिर होता है कि रियासत में BRS एक मजबूत मुतबादिल और असल अपोजिशन ताकत के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि हालिया पंचायत और बलदियाती इंतखाबात में अवाम ने BRS को नुमायां हिमायत की और कई मुकामात पर पार्टी मजबूत मौक़िफ़ में है। बाज़ जगहों पर हंग असम्बली जैसी सूरत हाल में आइंदा हिकमत अमली पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव से मुशावरत के बाद तय की जाएगी। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात में सरकारी मिशनरी और वसाइल का गलत इस्तेमाल हुआ, इसके बावजूद वोटर्स ने बेखौफ होकर वोट दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अवामी मसाइल, फलाही वादों की अदम तकमील और कमज़ोर तबक़ात की मसाइल पर अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। BRS पार्टी के डिप्टी लीडर हरीश राव ने कहा, बलदियाती इंतखाबात में BRS के 700 से ज़्यादा वार्ड्स में कामयाबी कांग्रेस हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अवामी रद्दमल का वाज़ेह सबूत हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत दबाव, धौंस और वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद BRS उम्मीदवारों को कामयाबी से नहीं रोक पाई। उन्होंने पार्टी को कामयाब बनाने कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, अवाम, कारकुनों और सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा, अवाम ने पंचायत और बलदी इंतखाबात में हुक्मरान जमात को सबक सिखाया है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत में तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई है, इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए, फलाही स्कीमें रुक चुकी हैं। उनके मुताबिक हालिया नतायज से वाज़ेह है कि मुस्तकबिल में कांग्रेस का मुतबादिल बनने और इक़्तिदार हासिल करने की सलाहियत
सिर्फ बीआरएस पार्टी के पास है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बलदियाती इंतखाबात के नतायज पर कहा कि बीजेपी रियासत में मजबूत हुई है और अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा यानी कि 250 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 6 म्यूनसिपैलिटीज में पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। करीमनगर और निजामाबाद कॉरपोरेशन पर भी कब्जा होने की तवक्को है। रामचंद्र राव ने कहा, नारायणपेट, आदिलाबाद और रायकल में पार्टी का चेयरमैन बनने के इम्कानात हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से मजीद ओहदे हासिल किए जाएंगे। बाज़ अजला में नतायज तवक्को के मुताबिक नहीं आए, लेकिन मजमूई तौर पर तकरीबन 350 नशीसें जीतने का दावा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस, बीआरएस और दीगर जमातों ने मिलकर काम किया। मुअल्लक़ सूरत हाल में मुकामात पर बीजेपी किसी की हिमायत नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई पार्टी हिमायत करे तो उसे कबूल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव की सदारत में सेक्रेटरीट में स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। इसमें रिवैम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स स्कीम और धरती आबाजना जातिया अभियान के तहत तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPRS का जायजा लेकर मंजूरी दी गई। इजलास में तवानाई, मालियात, बिजली तकसीम कार कंपनियों के आला अफसरान ने जारी इस्लाहात, बुनियादी ढांचे की मजबूती और जदीदकारी के मनसूबों की पेशरफ की। चीफ सेक्रेटरी ने डिस्कॉम के नुकसानात कम करने, AT&C नुकसानात में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेक्शन नेटवर्क और उसके साथ साथ दूसरे निज़ाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, बिजली की तकसीम के निज़ाम को मजबूत बनाना सनअती तरक्की, ज़राई पैदावार और रियासत की मजमूई समाजी व माशी तरक्की के लिए निहायत ही अहम है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मस्जिद मुस्लिम जंग अल मारूफ सहीफा मस्जिद के तोसी शुदा हिस्से का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मस्जिद के तोसी काम जारी थे जो मुकम्मल हो चुके हैं। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह करते हुए इसे मुसल्लियों के लिए खोल दिया। मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने मस्जिद के तामीराती कामों में ताउन करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। इफ्तिताही तकरीब में मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह खादरी, शेखुल जामे जामी निज़ामिया, SM अबरार, साबिक़ रुकन बल्दिया आजमपुरा डिवीजन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमद्दीन ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया के 68 साल की तकमील के सिलसिले में 14 फरवरी बरोज़ हफ्ते को दारुस्सलाम में बाद नमाज मगरिब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलसा मुनक़िद होगा। जलसे के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल इंतज़ामात जारी हैं। इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया गया है। मजलिस के महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुंतखबा कॉरपोरेटर्स को भी जलसे में तहनीत पेश की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी के खुसूसी खिताबात होंगे। आम्मतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। माह रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बरक़ी, बलदी आबरसानी और दूसरे महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में जोनल कमिश्नर के अलावा वाटर वर्क्स के डायरेक्टर और GM ने भी शिरकत की। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते बताया कि हल्के चार मीनार की अहम मसाजिद मक्का मस्जिद, मस्जिद चौक और मस्जिद दारुश्शफा के अलावा दूसरे मसाजिद के पास इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि माह रमज़ान के दौरान चार मीनार, बस स्टैंड और खिलवत के पास पार्किंग का इंतजाम रहेगा। ओहदेदारों को तमाम इंतजामात माह रमज़ान की आमद से कबल मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने संतोष नगर डिवीजन में 40 लाख रुपए CC रोड और 10 लाख रुपए सीवरेज के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इससे पहले रुकन असम्बली ने मस्जिद साहबा में नमाज जुमा अदा की। मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सदर मुतमद्दीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। कुल्हिन सनती नुमाइश अब अपने इख्तिताम के आखिरी मरहले में है। 15 फरवरी बरोज़ इतवार को अलविदा कहा जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से नुमाइश देखने वालों का एक सैलाब उमड़ रहा है। नुमाइश की पूरी सड़क गाड़ियों और ट्रैफिक से जाम है। रात में नुमाइश बंद होने के औकात में तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक की वजह से पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। लोग नुमाइश के आखिरी दहे में ईदें
और त्योहारों की भी शॉपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा साल भर की ज़रूरियात ज़िंदगी के मलबूसात, क्रॉकरी, डेकोरेशन की अशिया के अलावा बनाव सिंगार, चादर, पर्दे वगैरह की भी खरीदारी की जा रही है। नुमाइश में जो कुलीन सतह के मेयारी अशिया फरोख्त की जाती हैं वो एक से काला डिज़ाइन के होते हैं। नुमाइश शुरू हुए ज़ायद 8 दहे पूरे हो चुके हैं। इसके लिए इसकी शुरुआत करने वाले 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की जितनी तारीफ की जाए कम है। सैदाबाद फ्लाईओवर की तामीर के लिए सैदाबाद चौरस से सड़क को बंद कर दिया गया था, लेकिन मकामी दुकानदारों ने मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला से कहा कि माह रमज़ान के दौरान अवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग व दीगर मकासद के लिए आना चाहती है, इसलिए रमज़ान के लिए कम से कम 1 महीने इस सड़क को अवाम के लिए खोला जाए। रुकन असम्बली ने ACP ट्रैफिक, GHMC, टाउन प्लानिंग व दीगर शोबों के आला अहदेदारों के हमरा इलाके का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से कहा 1 माह के लिए सड़क को अवाम के लिए जुज़वी तौर पर खोला जाए। रुकन असम्बली की हिदायत पर अहदेदारों ने इस बंद सड़क को आर्जी तौर पर खोलने का तयक़ुन दिया। चारमीनार के दामन और सड़क पर कारोबार करने वाले ठेला बंडियों को चारमीनार लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जब्त कर लिया गया। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को रवाना किया। मीर जुल्फ़िकार अली ने जब पुलिस के आला अहदेदारों से बात की तो पता चला कि पैदल चलने वालों को मुश्किलात पेश आ रही थी और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठेला बंडियों को जब्त किया। मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि वह यौमिया आमदनी पर गुजर बसर करने वालों को भारी चालान करेंगे तो उनकी गुजर बसर क्या होगी। मीर जुल्फ़िकार अली ने जब्तशुदा ठेला बंडियों को उनके मालिकीन को वापस दिलाया, जिस पर उन्होंने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुसलमबाग जंक्शन के पास रोड सेफ्टी से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर ACP ट्रैफिक चंदनगोट्टा जोन V चंद्र कुमार ने बताया, कमिश्नर पुलिस BC सजनार की हिदायत पर मुसलमबाग जंक्शन के पास अवाम में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर ACP ने कहा, सड़क हादसों की रोकथाम हर एक की जिम्मेदारी है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें, रॉन्ग साइड जाने, सिंगल तोड़ने या फिर ट्रिपल सवारी से गुरेज करें। पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर सैदाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर M सत्यनारायण के अलावा मलकपेट ट्रैफिक पुलिस का अमला भी मौजूद था। తెలంగాణ డీజీపీ గారి మరియు హైదరాబాద్ సిపి సార్ శ్రీ సజ్జనార్ సార్ అండ్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ జోయల్ డేవిస్ సార్ అండ్ సౌత్ ట్రాఫిక్ 3 డీసీపీ శ్రీ రాహుల్ హెగ్డే సార్ ఆదేశానుసారము ఈరోజు ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బేగంపేట్ వారి మరియు మలక్పేట్ ట్రాఫిక్ కోఆర్డినేషన్లో ఈ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రయాణికులు ట్రాఫిక్ వయలేషన్స్ చేయకుండా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలనే ఉద్దేశంతో 2 వీలర్స్ ద్విచక్ర వాహనం నడిపే వారికి కంపల్సరీ హెల్మెట్ ధరించాలని చెప్పేసి, మరియు అదేవిధంగా 4 వీలర్ కార్ కానీ వేరే 4 వీలర్స్ ఏవి నడిపినా కానీ కంపల్సరీ సీట్ బెల్ట్ ధరించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి నిర్వహించడం జరిగింది. అరైవ్ అలైవ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఈ రెగ్యులర్గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మా సీనియర్ ఆఫీసర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారము రోజు చేయడం జరుగుతున్నది. ఇది ప్రయాణికుల సురక్షిత కొరకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ सद्दाम कॉलोनी में दीवार के मुनहदम होने से 4 अफराद बशमल 2 बच्चे जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को मकाम वाक़े का दौरा करने की हिदायत दी। ACP फलकनुमा मोहम्मद जावेद ने अपनी टीम के हमरा मकाम वाक़ा पहुँचकर माना किया। जख्मी अफराद जकिया, रजिया, सुलेमान और अब्बू को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इन तमाम की हालत खतरे से बाहर बताई गई। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि दूसरों की दीवार का हिस्सा गिरने से यह वाक़या पेश आया। ACP मोहम्मद जावेद ने बताया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। उनका कहना था कि वसीम नामी शख्स के दीवार के गिरने से वाक़या पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी इस मौके पर मौजूद थे।
सिकंदराबाद के इलाके में एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया जहां बेटियों ने अपने वालिद को दी गई जायदाद के बाद उन्हें घर से बेघर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राजालिंगम नामी शख्स जो सरकारी मुलाजमत से सबकदोश हुए थे, मारटपल्ली में अपनी बेटियों भाग्यलक्ष्मी और झांसी को 130 गज का प्लॉट दिलाया, लेकिन बेटियों ने वालिद से घर मिलने के बाद उन्हें बेघर कर दिया। यहाँ तक कि ज़ईफ वालिद को दाने दाने का मोहताज कर दिया गया। पड़ोसियों ने बेबस और मजबूर राजालिंगम की मदद की और जुमे को राजालिंगम बेटियों की नाफरमानी और जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते देखे गए। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से बराह सिकंदराबाद गांजा मुंतकली की कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के साकिनान 2 अफराद 18 किलो से ज्यादा गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। मुसद्दिक़ा इत्तला पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अभिषेक सिंह और अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार करते हुए 9,14,400 रुपये मालियत का गांजा जब्त कर लिया गया। टास्क फोर्स खैरताबाद ने एबिट्स पुलिस स्टेशन के हदूद में तिलाई चेन छीनने के वाक़े में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने याकूतपुरा पीएन नगर के साकिन सलमान पाशा को गिरफ्तार करते हुए 17 ग्राम की तिलाई चेन, एक 2 व्हीलर, मोबाइल फोन और 33,000 रुपए की नगद रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि 8 फरवरी को सलमान पाशा ने चापल रोड के पास तनहा जा रही खातून की तिलाई चेन छीनकर फरारी अख्तियार की थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए सलमान को गिरफ्तार किया है। चादरघाट पुलिस ने 10 लापता हुए मोबाइल फोन का पता चलाते हुए उन्हें हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। मुतासिर ने CEIR पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। मलकपेट ACP के सुब्बा रेड्डी, चादरघाट इंस्पेक्टर ब्रह्मू अरिकेसानी और DID श्रीनिवास राव ने बताया कि 17 मई 2023 को CEIR पोर्टल का आगाज किया गया था और इससे अवाम को काफ़ी सहूलत हुई है। अपना मोबाइल फोन पाने वाले अफराद ने पुलिस की बरवक्त कारकर्दगी और इक़दामात पर इजहार तशक्कुर किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत, तकरीबन 1500 वाट्स पर कामयाबी। बीआरएस दूसरे नंबर पर। बाज बलदियात में आजाद उम्मीदवारों का बादशाहगर मौक़िफ़। निजामाबाद कॉरपोरेशन, भैंसा व बोधन में मजलिस के 12 उम्मीदवार मुंतखब। जुमला 65 उम्मीदवार कामयाब। बैलेट पेपर की वजह से इंतखाबी नतायज में ताखीर। बलदी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से किया इजहार तशक्कुर। हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी पर अवाम का फैसला, वज़रा का रद्द-ए-अमल। हुक्मरान जमात तमाम कोशिशों के बावजूद अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम। तमाम वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद बीआरएस के उम्मीदवार कामयाब। केटीआर और हरीश राव का नताइज पर तबसरा। रेलवे पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम, 2 अफराद गिरफ्तार। और टास्क फोर्स ने तलाई चेन छीनने वाले सारिक को लिया तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।